हक सच समाज ते सियासत, धर्म करम फर्ज ही इबादत। यह है तुहाडी आवाज दी ताकत। पंजाबी रेडियो USA। पंजाबी रेडियो USA। पंजाबी रेडियो USA सुन रहे सारे ही मानयोग ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ विश्वामित्र टंडन जी। विश्वामित्र टंडन जी, जी आया नु, स्वागत है आपका पंजाबी रेडियो USA के प्रोग्राम पे जी। सभी को ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, 11 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ सब तो पहले टंडन जी, आपका पहली बार आना हुआ है अमेरिका में, अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसे रहा आपका सफ़र? सबसे पहले सफ़र बहुत अच्छा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, और मुझे युवा सिटी तक पहुँचने में रास्ते में जो हरियाली और जो कुछ दिखा सब बहुत अच्छा लगा मुझे जी। बहुत अच्छा इलाका है जी, बहुत ग्रीनरी है जी। बिल्कुल जी। आपका भी स्टे मुझे लगता है जून तक है, कुछ दिन तक आप यहीं पे हैं। सो आप देखेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे, और हम इनका धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने ये पीलीभीत का जो फर्जी मुठभेड़ है, फर्जी जरा इनकाउंटर हुआ था उस टाइम के उत्ते, उस मौके पे उसको सामने लाया। सो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। विश्वामित्र टंडन जी, भी आपको कैसे ये लगा भी, आपको लगा भी इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको लगा भी दाल में कुछ काला है? ये जिस दिन मुठभेड़ हुई थी, तो हमारा छोटा सा जिला है, ये मुठभेड़ जिले के थाना माधोटांडा में जी पड़ने वाले जंगल में दिखाई गई थी। तो वहाँ हमारे एक माधोटांडा में रिपोर्टर थे, मिस्टर इस्लामुद्दीन खां जी जी, वो इस पूरे घटनाक्रम के टच में एक दिन पहले से थे जी। वो मॉर्निंग में ही मेरे घर पे आ गए थे और मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे रात में एक दिन पहले शाम को बदायूं से पकड़कर सिख तीर्थयात्रियों को लाया गया है जी,
और उन्हें रात में जो है वो फर्जी मुठभेड़ में दिखा के मार दिया गया है। जी जी और लेकिन कितने लोग मारे गए हैं, कहाँ कहाँ क्या पुलिस रिकॉर्ड्स में दिखाया है, ये मुझे नहीं पता। हम्म। जी तो हम लोग अपने स्तर से इसकी जानकारी जुटाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे जी कि इसी बीच में जो उस समय एसपी थे मिस्टर आर.डी. त्रिपाठी, जी। तो उनके यहाँ से फोन आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने रेजिडेंस पे उन्होंने बुलाई है। जी जी तो हम लोग 11 बजे जितने भी 5-7 अखबारों के जर्नलिस्ट थे वो उनके घर पे पहुंचे। तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात में माधोटांडा के जंगल में 3 जगह अलग अलग मुठभेड़ हुई है जी जी और उसमें 10 आतंकवादी मारे गए हैं और पुलिस की ये बहुत बड़ी सफलता है। जी और इस घटना के साथ जिले में जो आतंकवाद फैला हुआ है उसका वो समाप्त हो जाएगा। जी और पुलिस ने उनसे बहुत सारे हथियार भी बरामद किए हैं। जी तो हम लोगों ने पूछा कि इसमें पुलिस वाला कोई इंजर्ड हुआ है जी। क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, पुलिस वाला कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। कि पुलिस वाला कोई इंजर्ड नहीं हुआ है क्योंकि पुलिस ने बड़े टैक्टफुली जो है वो इनको घेर के मारा था। अच्छा जी जी। तो हम लोग आसानी से ये समझ गए कि उस दौर में जो पुलिस थी वो कई थाने ऐसे थे कि जो रात में बंद हो जाते थे ठीक है। दहशत में। और अगर पुलिस को बता दिया जाए कि कोई आतंकवादी फला इलाके में है तो वो उसके करीब जाने की जगह और दूर हो जाते थे। जी तो इतनी पुलिस बहादुर तो हो नहीं सकती कि एक भी पुलिस वाला इंजर्ड नहीं हो जी और सारी की सारी पुलिस 3 अलग अलग मुठभेड़ों में इतने सारे लोगों को मार दे। जी। लेकिन ये बात हम ये सच्चाई बगैर तथ्यों के बगैर आधार के हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते जी। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि इसका इन्वेस्टिगेशन मुझे करना है। जी तो मैंने कप्तान साहब से ये कहा कि भाई जिन जिन जो लोग मारे गए हैं, जो आपने मारे हैं लोग, उनकी लिस्ट दे दीजिए क्योंकि आपने बहुत बढ़िया गुड वर्क किया है। जी। तो उनके आप मुझे नाम पते दे दीजिए। ठीक है। तो उन्हें ये शायद गुमान भी नहीं होगा कि ये जो मैं नाम पते इनको दे रहा हूँ जी इसके पीछे तो क्या ये कारण है। इसका कोई दूसरे तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने वो सब नाम पते में दे दिए। ठीक है। और उसके बाद हम घर आ गए और हम अपने जो माधोटांडा के रिपोर्टर जिन्होंने सबसे पहले मुझे ये सूचना दी थी, जी इस्लामुद्दीन खान ने, जी कि ऐसे ऐसे फर्जी मुठभेड़ में मारे गए हैं। और रात में भी मैं बाइफरकेशन गेस्ट हाउस रहा था, मुझे पास में नहीं जाने दिया गया, दूर रोक दिया गया। जी लेकिन उस गेस्ट हाउस के चौकीदार ने मुझे सारा घटनाक्रम बता दिया था। जी तो मैं उन्हें साथ में मोटरसाइकिल पे बैठाल के ले गया। ठीक है जी। और जो एड्रेस थे उसमें से 2 एड्रेस जो ज्यादा करीब थे, 3 एड्रेस थे थाना अमरिया के, जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जी वहाँ हम पहुंचे और हमें अपनी और भी निजी जानकारी से मालूम हुआ कि उस जिस बस में भर के लाए, जिस बस में तीर्थयात्री सवार थे, जी तो उस बस में और भी लोग थे जिन्हें पुलिस ने उतार दिया था। जो बूढ़े लोग थे, जी जी जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उन्हें उतार दिया था उन्होंने। और जो यंग लोग थे उनको उन्होंने पकड़ के ले आए थे एक मिनी बस में बैठा के। जी। तो ऐसे 2 परिवारों से हम जाके मिले जो उस बस में सवार थे और इस घटनाक्रम के गवाह थे। उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वो घर से मालूम हुआ कि वो अपने फार्म पे हैं। तो 4-5 किलोमीटर दूर फार्म था, उस फार्म पे गए, खेतों में काम कर रहे थे। उनसे पूछा तो पुलिस की दहशत इतनी की थी कि उन्होंने हमें ये सब सच बताने से इनकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, आपको किसी ने गलत बताया है, जी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो गए नहीं थे तीर्थ यात्रा। अच्छा जी। 2 परिवारों ने इस तरह से हमको मना कर दिया जी और हम लगभग निराश होकर लौट रहे थे कि हम इस स्टोरी को नहीं खोल पाएंगे। जी जी ठीक है। लौट रहे थे तो एक सज्जन हमें रास्ते में मिले, बोले आप ये जो सच जानना चाहते हो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये ममरिया कस्बे के बाहर एक नरेंद्र नाम का लड़का मारा गया था। जी तो एक लड़का जो मारा गया था तो उसकी माँ जो है बहुत रो रही है, तो कोई परिवार वाला बताए माँ जरूर बता देगी जी बिल्कुल क्योंकि माँ बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकते कर जी। सकती। तो बोले आप चले जाओ। तो नहर किनारे के किनारे की रास्ता थी 4 किलोमीटर दूर की, तो हम लोग पहुंचे हम वहाँ। तो उसकी माँ ने सब सच में बता दिया। बताया कि ऐसे ऐसे उसे मारा गया है। और उस बस में ये लोग भी सवार थे जिनसे हम थोड़ी देर पहले पूछ के आए थे कि आप भी बस में थे और आप उसमें क्या हुआ था बताइए। तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं थे। जी जी जी। तो माँ ने सब बात हमें बताई, पूरा घटनाक्रम वो हमने नोट किया, माँ की फोटो ली और लौट के फिर हम उन 2 परिवारों के पास गए। अच्छा जी। और हमने उनसे कहा कि भाई आप तो मना कर रहे थे, उसकी माँ तो ये बता रही है।
ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बताया कि देखिए मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरा उल्लेख मत कीजिएगा, जी जी लेकिन सच तो आपको पता ही चल गया है। सच बात यही है, आप देख रहे हैं कैसा माहौल है, जी हमें भी मार देगी और जी हम लोग किसी दीन के नहीं रहेंगे, इसलिए हमने आपसे मना कर दिया था, हमारा उल्लेख मत कीजिएगा। जी 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 सो ये तो वो शुरुआत के दिनों में थी, जब उसी दिन में जब नेक्स्ट डे जब आप गए तो उन्होंने आपके साथ बातचीत की, तो आपका जैसे ये शक था वो और भी गहरा हो गया, तकरीबन यकीन की तरफ बढ़ने लगा। तो जब पुलिस वालों को भी पता लगा होगा, उन्होंने भी आपको रोकने की कोशिश की होगी, या ऐसे वैसे जैसे अक्सर पता ही है भी रोकने की कोशिश भी, ताजो उनका नाम जो आगे ना आ पाए, तो क्या क्या कैसे कैसे कोशिश की उन्होंने? उस समय तक पुलिस वालों को नहीं पता था कि हमने क्या किया है। जी जी हम वहां से लौटे तो उस समय हमारा अखबार हिंदी का अमर उजाला जी जी बड़ा जल्दी छपा करता था, जी तो शाम के 7 बज गए थे लौटने में हमें। जी तो जो बरली में अखबार छपता था, तो हमने इस्लामुद्दीन से, जो हमारे साथ में गए थे, माधव टांडा के रिपोर्टर, जी डाल दो, खबर लेके और फोटो लेके मैं बरली गया। जी तो बरली में उस समय जो यूनिट के मालिक थे वो मिस्टर राजुल महेश्वरी जी थे, उनको मैंने जाके पूरी घटनाक्रम बताई। उन्होंने कहा कि भाई खबर दो, ये तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट है, जी जी मगर इस सच को छापा कैसे जाए, जी ये हमें सोचना है, जिससे कि हम लोग भी किसी परेशानी में न पड़े, तुम भी न पड़ो, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। तो उस समय बिल्कुल। हमारे संपादक थे मिस्टर सुनील शाह, जी 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 उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने उनके जिम्मे किया कि भाई इसे देखो और समझो कि इस स्टोरी को कैसे छापना है, जी किस तरह छापें कि सच भी सामने आ जाए और हम जवाबदेही से भी बच जाएं। जी वो 1 घंटा बैठे सोचते रहे, उनकी समझ में नहीं आया इसे कैसे छापा जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा बज गए 8, और फिर अखबार छपने का टाइम खत्म हो गया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि टंडन जी, अब आज ये नहीं छप सकती है, आप सुबह 10 बजे आओ, मैं रात भर सोचूंगा, जी जी कल छपेगी। मैं अगले दिन फिर सुबह 9 बजे वापस पीलीभीत लौट आया। अगले दिन फिर मैं सुबह बस से फिर बरली पहुंचा 10 बजे। ठीक है। तब तक वो रात में सोच चुके थे। उन्होंने कहा टंडन जी मेरी समझ में आ गया, मैं ये माँ के हवाले से पूरी खबर छाप रहा हूँ। और उन्होंने नीचे फ्रंट पेज पे बॉटम में ये माँ के हवाले से खबर छापी कि मेरा बेटा निर्दोष मारा गया है। जी तो इस तरह ये सच जो है वो एक दिन लेट सामने आया दुनिया के। हाँ जी हाँ जी तो जब अखबार में छप गया तब पुलिस वालों को मालूम हुआ जी भी ऐसा हुआ है। हाँ। तो जो हमारे उस समय एएसपी थे मिस्टर ब्रजेंद्र शर्मा, जी जी तो उन्होंने हमारा जो एक रिपोर्टर थे उनसे ये कहलवाया। वो समझ गया कि अब इसमें जो है वो लगातार बहुत सारी चीजें छपेंगी, जी आएंगी तो भी। उन्होंने जांच बढ़ेगी। छपने के बाद ये उनसे कहलवाया हम मेरे लिए कि भाई उनसे टंडन जी से बात कर लो, वो 1.5 लाख रुपए कहें हम शाम तक जो है पहुंचा देंगे। अच्छा जी। अच्छा हाँ, लेकिन ये है कि अब और कुछ ना छापें, जो छप गया सो छप गया। जी जी अच्छा। तो वो उस रिपोर्टर ने हमें बात बताई थी आके, और वो भी जानता था और हम भी जानते थे कि ये भी ऐसा तो नहीं ना होगा। रुपए लेने हैं, ना खबर छपने से रुकनी है। जी जी तो उसके बाद लगातार कई दिनों तक हम लोगों ने बहुत से ऐसे तथ्य छापे जो बाद में सीबीआई की जांच का विषय बने, जी जी और तमाम जो सिख संगठन थे उनकी भी जांच का विषय बने, उन्हें भी अपनी ये बात कहने में बल मिला। जी 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 बाद जी तो पूरे देश में तूफान आ गया था। तमाम हिंदुस्तान के अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने और तमाम जो बड़े बड़े अखबार हैं उन्होंने इसकी सारी खबरें प्रमुखता से छापी थी, और देश जी। पंजाब से, दिल्ली से तमाम सिख नेता पीलीभीत में आने लगे थे। करीब महीना भर तक जो है वो स्थिति जो थी वो ऐसी रही कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई वीआईपी आ रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए इस घटना के बाद पुलिस पे, यूपी गवर्नमेंट पे इतना दबाव पड़ गया था जी जी कि यूपी गवर्नमेंट को, जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर बाहर करना पड़ा था। जी ठीक है। तो पुलिस के ट्रांसफर होने के कारण पूरी पुलिस जो थी वो विद्रोह कर उठी थी। जी जी रात के 11 बजे एक दिन जिले भर के सारे पुलिस वालों ने अपने हथियार हाथ में लेके डीएम की कोठी घेर ली थी, जी हाँ। नारे लगाए थे, विद्रोह कर दिया था। ठीक है। बहुत मुश्किल से पुलिस का विद्रोह शांत हुआ था, और हम लोगों के लिए करीब 1 महीने तक अखबार में जो क्राइम की कवरेज थी वो करना मुश्किल हो गया था। जी जी। पुलिस उन्होंने वाले हम लोगों के दुश्मन बन गए थे। उन्होंने आपको तंग परेशान भी किया? नहीं, हम जाते ही नहीं थे। हमने अपने पूरे स्टाफ को हिदायत दे दी थी कि कोई जी किसी पुलिस वाले के पास में नहीं जाएगा, ना पुलिस लाइन जाएगा, ना पुलिस अफसर से मिलेगा। कोई खबर छूट जाए क्राइम की तो छूट जाए, जी लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि हम उनके हमले से उनका हमला हम पर हो जाएगा। और यही हुआ भी
दिल्ली के कुछ मीडिया वाले पीलीभीत में आए इसकी कवरेज के लिए, जी उन्हें इस चीज का गुमान नहीं था और हमारे धोखे में वो पिट गए। जी उनका कैमरे तोड़ दिए गए, मीडिया वाले तो कैमरे तोड़ दिए गए, उन्हें पीट दिया पुलिस वालों ने। जी। तो महीना भर तक करीब, जब तक सब कुछ शांत नहीं हो गया, हम लोगों के लिए कवरेज करना क्राइम की जी मुश्किल हो गया था। लेकिन ये था कि बाद में सब चीज़ें ठीक हो। ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਮਿੱਤਰ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਬੱਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੂ ਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਇਆ। बिल्कुल। तो विश्वमित्र जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे भी, आप शुरू से ही ऐसे, जैसे आप बोल रहे हैं भी क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, ऐसे और भी शायद कई पहले भी कोई ना कोई केस होते रहे होंगे। जी। इससे पहले मैंने 1983 में अमर उजाला ज्वाइन किया था। जी जी। और 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जी सिख दंगे उत्तर प्रदेश में भी हुए थे, पूरे देश में हुए थे, उत्तर प्रदेश भी प्रभावित रहा था। और उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दंगा पीलीभीत में हुआ था। जी। तो पीलीभीत में जो दंगा हुआ था उसकी कवरेज भी हमने इसी तरह से करी थी। उसमें गांव-गांव जाले फूंक दिए गए थे, जो गुरुद्वारा था वो जला दिया गया था, सिखों की दुकानें जला दी गई थी। जी। और हमारे शहर में एक रेलवे स्टेशन पे एक होटल था सिख का, एक उसी में सोता था वो सिख। जी। होटल भी फूंक दिया गया था, उसे भी जिंदा जला दिया गया था। तो हम लोगों ने उसकी भी बहुत कवरेज करी। और जो जिस सिख को जिंदा जलाया गया था होटल वाले को, जी जी, उसकी उस समय ये मोबाइल सिस्टम नहीं था। हम लोग लैंडलाइन से फोन करते थे, लैंडलाइन भी जब काम नहीं करता था तो हमें, और कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हम लोगों को कई बार टेलीफोन एक्सचेंज जाके वहां से फोन से खबर नोट करानी पड़ती थी। जी। तो सुरक्षा के लिहाज से कई बार हम लोग जो थे वो शहर में निकलते थे, तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते थे, उनकी गाड़ी से सारे प्रेस वाले 4-5 जो थे वो इकट्ठे होके निकलते थे। जी। तो ये जो सिख होटल वाला जो जिसका होटल फूंक दिया गया था जी, और उसे जिंदा जला दिया गया था, उसकी खबर हम फोन से नोट कराने जा रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने हमें मना किया कि ये खबर आप मत कराइए नोट, और क्योंकि इससे जो प्रशासन को दिक्कत हो जाएगी। जी जी। भाई ये तो खबर तो अपने आप पे है इम्पोर्टेंट है, तो खबर तो नोट कराएंगे ही। जी। हमने खबर जो थी नोट कराने लगे तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया, हाथ से खींच लिया। अच्छा। फिर हम एक लाइन ही बोल पाए थे हम, फिर वो हमने चले आए, फिर हमने 1 घंटे बाद फिर अलग से टेलीफोन एक्सचेंज जाके वो खबर नोट कराई। वो खबर अब हमारे ही अखबार ने छापी और अखबारों ने नहीं छापी। तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थे उस समय कुलवंत सिंह जी, वो अमर उजाला में पहले रिपोर्टर भी मुझसे पहले रह चुके थे, और अमर उजाला के मालिक के जो थे मिस्टर अतुल महेश्वरी जी, वो जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उस समय बरली बैठते थे, उनके करीब भी थे। लेकिन मैं जब 1 महीने बाद प्रेस में गया और अतुल महेश्वरी जी से मिला, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उस दिन जो तुम खबर नोट करा रहे थे उस सिख होटल वाले को जिंदा जलाने की, तो किसने तुम्हारा फोन काटा था? क्या वो सूचना अधिकारी कुलवंत सिंह थे? मैंने कहा हाँ वही थे भाई साहब। जी जी। तो उनको ये पता था, मतलब इत्तेफाक से वही डेस्क पे बैठे हुए थे, उन्होंने ही वो फोन उठाया था किसी डेस्क रिपोर्टर की जगह। जी जी। तो उन्होंने मुझसे कंफर्म किया। और ऐसे मालिक कम अखबारों के होते होंगे जो व्यक्तिगत संबंधों की परवाह नहीं करते थे, खबर को वैल्यू देते थे। उन्होंने उसी समय प्रेस का जो गार्ड था उसे बुला के ये आदेश कर दिया कि कुलवंत सिंह सूचना अधिकारी के कभी भी प्रेस आए तो प्रेस के अंदर उन्हें न घुसने दिया जाए।
और हमेशा के लिए उनके प्रेस में प्रवेश पर रोक लगा दी। जी। तो उनका बहुत संबल रहता था मुझे। और ऐसी इस तरह की किसी भी तरह की ऐसी जाति की, आम आदमी के साथ जाति की खबरें होती नहीं, चाहे वो किसी भी कौम के साथ हो, चाहे वो गरीब आदमी के साथ में हो। जी जी। वो हमेशा मतलब बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में हम लोगों के साथ में खड़े रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैं अखबार छोड़ चुका हूँ, मैं 10 साल पहले रिजाइन कर चुका हूँ। जी जी। अब मैं अमर उजाला में नहीं हूँ, अब मैं फ्रीलांसर हूँ। जी जी जी। ठीक है। लेकिन ये है कि मैं उन्होंने जो मुझे उनकी हिम्मत से, जो उनकी सपोर्ट से जो मैं ये कर पाया, उसमें बड़ी वजह उनकी हिम्मत ही थी। जी। और शायद अगर वो शायद सपोर्ट नहीं देते तो मैं इस तरह की खबरें फील्ड से लाने के बाद भी शायद ना आ पाता और न ये सच सामने आ पाते। जी जी। विश्वामित्र जी, एक जो 11 सिख तीर्थ यात्री मारे गए थे, इनके बारे में आपने हमें बताया, और 1994 में जो 7 सिख टाडा के जो बंदी थे वो मारे गए थे, इसके बारे में आप? हाँ जी 1994 में। जी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ये उस समय जेल, पीलीभीत जेल में लगभग 3 दर्जन टाडा बंदी बंद थे। तो उनका किसी बात पे जेल कर्मचारियों से झगड़ा हो गया था। हालांकि जेल कर्मचारियों ने तो यही आरोप लगाया था कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। मैं नहीं जानता कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे जी। या ये तो चूंकि रात की बात थी या उनका वास्तव में कोई झगड़ा हुआ था। मगर ये सच था कि जो फैक्ट्स थे उसके हिसाब से कि इन्होंने जो 7 टाडा बंदी थे उनकी पीट के हत्या कर दी थी और 21 उसमें टाडा बंदी इंजर्ड हुए थे। तो दूसरे अखबारों ने तो यही छापा था कि जेल कर्मियों और टाडाबंदियों के संघर्ष में 7 टाडाबंदी मारे गए, 21 घायल हुए। जी जी। लेकिन हमारे अखबार ने यही छापा था कि जेल कर्मियों ने 7 टाडाबंदियों की पीट के हत्या कर दी। जी। और जो हमने छापा था वो बाद में जो CBCID की जांच हुई उसमें सच भी साबित हुआ। जी। CBCID ने जो लगभग 3 दर्जन या 4 दर्जन थे जेल कर्मचारी, जी जी, उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। जी जी। और उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। जी। तो उनके आदेश से ही CBCID की जांच हुई थी। जनहित में उन्होंने आदेश किया था कि CBCID की जांच सौंपते हैं लोकल पुलिस से हटा के। जी जी। और बाद में CBCID ने चार्जशीट भी उनके खिलाफ दाखिल कर दी। लेकिन उन लोगों को ना तो कभी जेल जाना पड़ा, ना उन्हें कभी अदालत का मुंह देखना पड़ा। जी। केवल एक जेल के सिपाही था जिसने अपनी जमानत कराई थी। जी जी। बाकी लोग हाई कोर्ट से पहले स्टे ले आए थे और बाद में गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने केस को विड्रॉ कर लिया। जी। तो उसको अब उसमें कोई कार्रवाई तो होती कहीं नजर आ नहीं आ रही। जी। तो विश्वामित्र जी, जब आपने ये जो पहले 11 सिख श्रद्धालुओं की जो फर्जी मुठभेड़ में मार दिए गए थे वो लेके आए, अब जब उनको सजा हुई है तो आपको तसल्ली होती है भी वाकई जो आपने काम किया उसका कुछ फल मिला है, यहाँ आपको लगता है भी बहुत देर होगी? देखिए, न्याय में देर तो हुई है जी, लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था है, पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान की जुडिशरी ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनसे लोगों में, हालांकि बहुत से सुधार की जरूरत अभी भी है, सिस्टम में होती है, हमेशा रहती है जी, लेकिन जुडिशरी ने फिर भी बहुत से ऐसे फैसले पिछले सालों में दिए हैं जिससे लोगों को जुडिशरी पे पूरी आज भी उम्मीद बनी रहती है। देर से सही उन्होंने 3 दर्जन करीब इन पुलिस वालों, 47 पुलिस वालों को जो उम्र कैद की सजा सुनाई, जी, वो एक बहुत बड़ा फैसला था। और उससे लोगों में ये तो आस जगी है कि देश में न्याय भले देर से मिलता हो लेकिन न्याय मिलता है। और मुझे तो बहुत संतोष हुआ कि जो मैंने भारी खतरा मोल लेकर जो काम मैंने 25 साल पहले किया था, जी जी, उसका परिणाम अब सामने आया। तो मुझे तो बहुत संतोष हुआ कि जी, हाँ, ये फैसला हुआ है, ये ठीक हुआ है फैसला। बिल्कुल, हमें भी आप के ऊपर नाज है भी, उस मौके पे ऊपर आपने अपनी दिल की आवाज़ सुनी, आपको जो तथ्यों के आधार के ऊपर मिला जी, और ये चीज़ फर्जी मुठभेड़ को आप रोशनी में लेके आए, तो उसके बाद में उनके परिवार वालों को कुछ तो कहने को होगा भी, हाँ कुछ तो मिला है, उन्हें न्याय मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और आपको शायद थोड़ा सा मलाल अभी रहता होगा क्योंकि जो हमने सुना जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उनको अभी सजा इस मामले में नहीं सुनाई गई है कोई भी, वो? हाँ, देखिए, ये तो एक सच बात है कि जो इसमें
जो असली दोषी थे, जी जी असली, उनको तो कोई सजा नहीं मिली, उनके खिलाफ तो मुकदमा भी नहीं चला। असली दोषी तो पुलिस अधिकारी थे, जी वो जी ना तो कभी मुलजिम बनाए गए, ना उन्हें जेल जाना पड़ा, ना उन्हें सजा मिली। जी तो इसका मलाल तो है। और कोर्ट ने भी जो इसमें 47 पुलिस कर्मियों को जो उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है, उसमें उन्होंने अपने आदेश में भी इस ओर इंगित किया है जी कि जो इतनी बड़ी घटना, उन्होंने आदेश में अपने कहा था कि इतनी बड़ी घटना बगैर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश के नहीं हो सकती। जी जी तो उन्होंने भी ये उसमें कहा, कोर्ट ने भी, कि इसमें जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जी लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद कोई कार्रवाई होगी। हो पाए। जी तो केस अभी बंद कर दिया या इस पे आगे अभी चल रहा है कुछ? केस तो वो तो जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई थी उसमें कोर्ट ने सजा सुना दी। जी 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 अब इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अगर उन्हें दंडित अगर करना है तो उसके लिए तो नए सिरे से उसमें जी। चार्जशीट दाखिल होगी। तो कोर्ट ने कोई इस तरह का सीधा कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने अपनी राय जाहिर करी। राय जाहिर। जी 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 बाकी ये है कि इसमें अब वो बाकी लोग जो देश के जो दूसरे संगठन है वो आगे आ सकते थे, वो इसमें ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे कोर्ट के इस जजमेंट को आधार बना के। जी जी लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जी जी और एक बार फिर जगमोहन जी दस दिए भी ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਟੰਡਨ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜੀ, ਤੇ 29 ਤਰੀਕ 29th ਆਫ ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਸਰਵ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਟੰਡਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ मौके ਦੇ ਉੱਤੇ उन दिनों में आपने जो सच्चाई सामने लाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और सलूट है और सलाम है आपको। और ज़रूर आगे चलते हुए भी फिर और भी जो बातचीत हम फिर करेंगे कभी। अभी जाने से पहले आप जो श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के स्नेह और सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमेरिका की धरती पे आके बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अपने ज़मीन पे तो मौका नहीं मिला इस तरह का सम्मान पाने का। जी लेकिन आप लोगों ने ये सम्मान देके मुझे मेरे अंदर से जो है वो बड़ी स्नेह और खुशी पैदा कर दी। जी जी तो हम एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यही आस करते हैं कि आप इसी तरह हमेशा न्याय के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। ਤੇ ਸੋਤਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਟੰਡਨ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਟਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਪੋਤੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਚੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਫਰਜ਼ ਹੀ ਇਬਾਦਤ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।